government is planning to make 3 years of rural service compulsory for MBBS students. Sir, what's your take on that? मतलब पहली बात तो मैं ये सोच रहा हूँ कि आप प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में जो स्टूडेंट पढ़ रहा है उस पर कैसे इम्पोज कर रहा, आपने तो उसके ऊपर कुछ खर्च भी नहीं करा. तो सर मूविंग ऑन सर, जो आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि सर हाउ वेल डू यू इंटरमिंगल योर पर्सनल लाइफ विथ सच अ बिजी प्रोफेशनल लाइफ? हाउ डज इट फील सर? आई थिंक टू बी हैप्पी पर्सनली यू हैव टू चिल एट होम. जो भी काम किया है यू हैव टू गो बैक एंड चिल एट योर होम. एंड आई डू नॉट बिलीव इन द रेस दैट पीपल आर हैविंग राइट नाउ. लाइक एक बार में यूजी निकल जाए, एक बार में पीजी निकल जाए, एक बार में ये निकल जाए. See, you put so much pressure on yourself that when you go back to your home, you're still under the effect of that. You're always under the effect of that. You ruin your mental peace, and then what happens? You become depressed. See, what I learned over the year that though people see that, for a few of my videos, I'm very angry. Personally, I do not get that much angry. Until unless someone is really pissed off, then my bar goes to very high. Personally, I do not get that much angry because I don't find any reason for that कि आप अपना mood खराब करो. Because so many times when I go back to my childhood, I come to know that when I used to get angry, I was just harming myself. Like अपनी चीज़ तोड़ दी उससे मैं आके, ठीक है ना, अपना ही सामान फेंक दिया. क्या मतलब, अपना नुकसान हो. सेम चीज़ आप गुस्से में आके अपना ही मेंटल पीस ख़राब कर रहे हो. दैट इज़ हार्मफुल टू यू ओनली. और इतना जो प्रेशर आप ले रहे हो कि मेरे को नहीं ये एक बार में करना है, ये एक बार में निकालना है, सब कुछ तैयारी करना, अपना सब कुछ देना, उसको एंशियस फील करना इज़ गुड. बट देन देयर हैज़ टू बी अ टाइम कि जब आप उसको नीचे लेके आओ, थोड़ा रेस्ट करो, थोड़ा मेंटल पीस करो. क्योंकि मेडिकल फील्ड में इट्स नॉट अबाउट 1 or 2 years. You have to be in this race for 14-15 years at least, and thereafter with your work. But initial 14-15 years they will be very tough. तो आपको एक mechanism चाहिए that your brain doesn't get saturated. Because when your brain gets saturated, you imbibe so much of negativity from everywhere, and you think just the word is not good enough. The thing is, weekdays are for you, weekend are for your mind. Leave everything, do not be that bookworm. ठीक है ना, आज मैं जहाँ हूँ कल मैं जहाँ भी होऊंगा, ठीक है ना. थोड़ा सा ऊपर नीचे वो लोग होंगे, मोस्टली ऑन द सेम पेज दोज हु वर लाइक रियली बिग बुकवर्म्स. और ठीक है ना, थोड़ा ऊपर नीचे होगा, मेरे को चलेगा. इट्स फाइन विद मी टू अर्न लिटिल लेस एंड एन्जॉय लिटिल मोर. बट it's not fine with me to earn a lot and enjoy nothing, tension में. So that is not good. कोई रेस मत लड़ो, एक बार में नहीं हो रहा, शांति से ड्रॉप लो, दोबारा तैयार करो. उसकी इंटेंसिटी में कोई कमी नहीं होनी चाहिए. बट when your mind is saturated, leave it, take a break, come back, start studying. I did it a lot of time. अगस्त में जब कभी ऐसा, जैसे यूजी में हमारे टाइम दिसंबर में एग्ज़ाम होता था, तो वंस आई वाज सैचुरेटेड इन अगस्त में. So my friend's sister was getting married in Hyderabad. I flew to Hyderabad, attended the marriage, came back, and I was like, now I'm feeling fresh.
ठीक है ना. एंड देन यू कम टू नो कि नहीं जो पढ़ा था ना वो और अच्छे से अब दिमाग में समझ में आ रहा है, बिकॉज आई जस्ट गॉट माई माइंड इन मी टाइम. हाँ, मी टाइम एंड गॉट माई माइंड इन अ गुड फ्रेम. तो एक वो रहना चाहिए थोड़ा. दूसरी चीज़ क्या है, जस्ट कुछ भी आपके साथ हुआ है, किसी ने कुछ बोला है, किसी ने कुछ किया है, ऑलवेज ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट देयर इज़ अ रीज़न बिहाइंड इट. शी माइट बी गोइंग थ्रू समथिंग, or someone might have said something to him, he's pissed. There are always circumstances, reason. Try to understand that, and we don't want to understand that. In our reasoning today, there is one thing, kisi ne humko kuch bola, we'll clash back, we have to give a fitting reply, we all have to be like that. No, just try to understand there may be something. So when you try to understand that, instead of being angry on that person, you will go and say, अच्छा बताओ ना बात क्या हुई, किसी ने कुछ बोला क्या, ऐसा कुछ हुआ क्या, and that makes a difference. And what happens कि कोई तुम पे गुस्सा हो and you'll suddenly start giving the person back, तो क्या उसका भी बढ़ेगा परेशानी, and you yourself will get more infuriated out of nowhere. अगर हो सकता तो मुझसे आराम से आगे बात, अच्छा क्या हुआ यार, कुछ बात हुई है, चल कॉफ़ी पीते हैं. यू गो हैव अ कॉफ़ी और दोनों बात करो, उसका भी मूड अच्छा है, एंड ऑफ द डे तुम्हारा मूड भी ठीक ही रहा. थर्ड थिंग, वी आर नॉट कंपैशनेट इनफ right now. We just love to be like very angry and give hate on everything. We have left that compassion that is needed today very behind, far behind. So that is, I realize all those things, so I just try to keep myself very, see the reason behind everything, and don't get much infuriated and just chill. डेफिनेटली सर. सर जैसे आपके भी ओपीडी में आप देखते होंगे, एक बहुत ही मैं हर डॉक्टर से पूछने की कोशिश करता हूँ, पेशेंट आते होंगे और कहते होंगे गूगल मेरा ये कह रहा है, मुझे ये सिम्टम है. सो हाउ डू यू रिप्लाई टू दो? फॉर्चुनेटली मेरे बहुत से पेशेंट ने ऐसा बोला नहीं है मुझे. बोला नहीं है, लेकिन हाँ वो इनडायरेक्टली समझ में आ जाता है. लाइक there is a lady, 80-year-old, she came with hematuria, 11 grams of proteinuria, sepsis, hyponatremia, creatinine level of 4, 80 years old, with hemorrhage and right-sided hemiplegia, drowsiness, disorientation, 80 years old. And I saved her. She was fine, but I told him that something or the other will keep happen because she is bedridden and you have to take care. But he will, every day the attender will come out of with some other gyan. I told him to get a dressing done because she was having some swelling in the right arm. I'm saying that she is hemiplegic, not using her arms. Do some exercise. I've written for the physiotherapist, get the physiotherapist involved in everything. Move the hand, it will go, and use this dressing. So he won't do anything, but he'll complain of it. Because he's seen something in Google, नहीं एक्सरे इतना नहीं कराना, ये harmful होता है. I'm like, I'm not exposing your patient to x-ray every day. It's been like 15 days she had her last x-ray. Now I have to see how much she has improved and everything. तो होता है, इनडायरेक्टली होता है, डायरेक्टली तो किसी ने गूगल खोल के भी दिखाया नहीं. बिकॉज वो दिखाएगा तो फिर मैं कह दूंगा तो भाई तू इसमें दवाई भी टाइप करके देख लेना कौन सी देनी है, क्यों आया मेरे पास, ये भी देख ले कि ये सिम्टम है तो क्या करना होता है. एंड इट विल बी स्कैरी. गूगल तो कुछ भी कराएगा. गूगल विल से गेट अ रेक्टल बायोप्सी डन फॉर माइल्ड पेन इन एब्डोमेन. यू विल गो एंड गेट अ रेक्टल बायोप्सी डन. दैट्स not possible, right? That is where you need a clinician to see and correlate everything. So sir, right now moving on to some medical education stuff, what will you advise a final year medical student to read for medicine? Like in present scenario, every batch is having only 5 to 6 months for medicine only. So what should they follow? Davidson is a very beautiful book for exams. The reason is their diagrams and their picturization. They'll make a human body and tell all the signs, symptoms and everything. And those little boxes they have, like, yes sir, even if you go through them, you will be able to write everything. That charts, yeah, yes, right.
For example, you go through the chapter of endocarditis, infective endocarditis. There will be a human body. They have marked all the symptoms. Then there is a box of Duke criteria, how to go Yes, through investigation. Take another this box of what medication you need to give, everything. Just get it done. That's more than enough. Please do not go through those books which have like those paper like you are reading out of a raddi paper type feeling, because they are zero on knowledge. You don't know the source kahan se they have got their material and everything. So this is, I know I had written from Davidson and this way only in my theory exam. I remember writing beautifully Cushing's wala. Usme bhi same, they had made a human body Yes, and pura. all the charts. So, and I got a very good marks in that. Everything I wrote from that only. So, for writing purpose, just Davidson. As my one of the professor used to say, that if you in the medical college in the final year, if you will read Harrison, you will pass with your son. ठीक है ना. तो Harrison is not for final year medical student to for writing purpose. You can use Harrison for boosting up your knowledge. अगर आपके पास बहुत टाइम था, अभी तो टाइम है नहीं, ठीक है ना. For clearing your doubt, अच्छा ये मेरे को समझ में नहीं आ रहा, let me check from Harrison, right? And after that, yes, once you're done with this theory and you're doing MCQ, then the reference point is only Harrison, right? Go through Harrison only. क्या कहते हैं, you can only read Harrison if you have started it from third year onwards. जब आपने पैथोलॉजी वगैरह ख़त्म कर दी and you're ready for the next step, then you can start Harrison. Davidson is best for final year. Just see those pictures, see those box, write them. You will pass nicely. Moving on to the PG scenario, what's your take on students joining coachings from second year, doing the online coachings that you Kills me. It kills me in that it's, come on, you are, college life is the best life of your time and you are ruining it. And it has ruined Manipal too. I'm very sad to say that it has ruined Manipal too. I went to Manipal for my convocation. So the best thing in Manipal is that in every hostel there used to be a small coffee shop. So we used to get a very good coffee, 10 to 11 rupees that time, and I was very addicted to it. So many of the Manipalites are addicted to it. So I used to had it 3 times a day, and it was very normal for someone to make out that I didn't had my coffee, because I would be sitting, in a corner like a zombie. And one of my friend, he used to become like irritable, very irritable. Small things like, मेरे को बताए बिना तुम लोग हिस्टोलॉजी की बुक चेक कराने चलेगा. मैंने कहा ऐसा कौन सी बड़ी बात होगी मेरे भाई, क्या हुआ? इट एक्चुअली हैपेंड. क्या हुआ? कॉफ़ी नहीं मिली क्या आज? कहते सारी दुकान बंद थी, नहीं मिली आज मेरे को. मैंने दूसरी वाली खोली है, चल बाइक पे बैठ चल. एंड वी वेंट, उसको कॉफ़ी वॉफ़ी पिलाई, देन वी केम बैक. तो इन दैट रोड आउटसाइड द हॉस्टल आफ्टर क्लासेस देयर यूज्ड टू बी good gathering of people. People used to have fun. There was a basketball court जहाँ NRI used to play basketball, and we would and Indians, we are Indians. Doesn't matter, you have basketball court, gilli danda court, kancha court, we'll come with our bat and ball and start playing cricket. Especially Tendulkar era. And IPL had just started, right? Yes, that year only IPL had just started, 2008. So we all used to go with our bat and ball in that basketball court, and NRI would like, अभी ये आ गए, अब चलो यार यहाँ से, ये तो क्रिकेट ही खेलेंगे. They used to convince us a lot. अरे तुम लोग क्या यार, 4 लोग खड़े हैं, 1 लोग बैटिंग कर रहा है ऐसे खड़े हुए. मैंने तेरे को बहुत आसान लगता है, पकड़ बैठा. और उसके बाद हम लोग सबसे अच्छे बॉलर को बुलाते थे, इसने कभी खेला नहीं है, कनाडा से है, इसको बॉलिंग कर. तो इट वाज फन. जब भी कोई अच्छी सीनियर जाती थी तो पीपल वाज लाइक, वन ऑफ माय फ्रेंड वाज, his name was Vinod Saini, and he had a knack. He was a very bubbly guy and very fun loving, and he fielded like Ravin Jadeja. He was a brilliant fielder.
तो जैसे ही कोई सीनियर मैम गई एंड ही वुड स्टार्ट शाउटिंग हिज ओन नेम, शाबाश सैनी, क्या बॉलिंग कर रहा है सैनी, सैनी क्या बैटिंग कर रहा है, एंड एवरीथिंग एवरीवन देन जस्ट पिक्ड अप फ्रॉम देयर, अरे निखिल क्या बॉलिंग कर रहा है, निखिल क्या कैच पकड़ा तूने निखिल, शाबाश, ऑल दोस थिंग, ये रौनक थी. एंड व्हेन आई वेंट फॉर माय कॉन्वोकेशन दिस ऑल वेंट ऑफ, देयर वाज नो वन. एंड आई ट्राइड टू फाइंड आउट द रीज़न व्हाई इट इज़ देयर, सो दे सेड सर कोचिंग खुल गई है यहाँ पे एंड नाउ एवरीवन गोज टू कोचिंग. आई वाज लाइक coaching has just killed Manipal. I know they will come up and say future is more important, this and that, blah blah. अपने आप को झोंक दो, मर जाओ, कांकड़े बन जाओ, पढ़ाई करो. क्यों? Because it gives us money. तो वो तो आके मोटिवेशन के लिए यही बोलेंगे. But you know you have to live this life. ठीक है ना? अभी ज़िंदा हो, तुमको नहीं पता तो अगला जन्म होता है कि नहीं. अभी तो ज़िंदा हो ना, अभी तो यहाँ हो, थोड़ा तो जी लो भाई, थोड़ा जी लो. ठीक है ना? अभी इसीलिए मैं कहता हूँ कब करोगे पार्टी, फ्लैट खाली है, थोड़ा तो जी लो, थोड़ा तो जी लो. कोई आ ही नहीं रहा, कोई आ ही नहीं रहा है, साले सब पढ़ाई में लगे हैं, कितना पढ़ोगे. तो दैट इज़ अ फैक्ट कि वो सारा रुइन हो गया. हम लोग इतना खेलते थे, पूरा वो सब भरा रहता था. ठीक है ना? उसके बाद अपना पढ़ते पढ़ते भी तो सब लोग, कोई रुका तो है नहीं, सब आगे निकल गए. वो मेरे सारे फ्रेंड सैनी और वो जो भी थे सब लोग आगे निकल गए. मैं भी लाइफ में ठीक ठाक कर रहा हूँ और आगे निकलूँगा. हसरत यही है, कोशिश जारी है. ऊपर वाले का रहा करम तो होगा, वो भी होगा. लेकिन द थिंग इज़ उन सब चीज़ें जो ख़त्म हो गई मणिपाल में, तो देख के काफ़ी दुख हुआ वो सब. जी सर. मणिपाल से आप मतलब काफ़ी अटैच्ड है, मतलब इट्स लाइक योर, हाँ, इट वाज लाइक माय सेकंड होम. यू कैन टेक आउट. मणिपाल मेरी पहली माशूका थी. मतलब भैया ना, यू कैन टेक आउट पर्सन फ्रॉम मणिपाल बट यू कांट टेक आउट मणिपाल फ्रॉम पर्सन. एक बार मणिपाल में जाइए और जीवन भर फ्लॉन्ट करिए कि हम मणिपाल से थे. मणिपाल ये आपको हक देता है. वहाँ घुसते ही जिस दिन आपने वहाँ पे साइन करा कि मैंने यहाँ एडमिशन लिया है, उसके साथ आपको मणिपाल ये हक देता है आप ज़िंदगी भर फ्लॉन्ट करना कि तुम मणिपाल से थे. और जबकि सर मणिपाल एक्चुअली मतलब काफ़ी लोग नहीं जानते, लोगों को लगता है प्राइवेट कॉलेज, बट वो प्राइवेट कॉलेज में भी सबसे बेस्ट प्राइवेट कॉलेज है. मतलब वहाँ जाने के लिए लोग प्राइवेट कॉलेज में भी मतलब गवर्नमेंट से ज़्यादा रैंक लानी पड़ती है तब जाके मणिपाल में. देखो, प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट हो, ठीक है ना, मणिपाल एक्चुअली में सबसे अच्छा है. जितना एथिक्स हमको वहाँ पे हमारे प्रोफेसर्स सिखाते थे, यू नो, हमारी क्लिनिकल पोस्टिंग में दे हैड ऑलवेज गिव प्रॉपर इम्पोर्टेंस टू एथिक्स. यू हैव टू बी एथिकल, यू हैव टू बी एथिकल, यू हैव टू फर्स्ट थिंक अबाउट योर पेशेंट इन एवरी, यू नो, इन every possible way. Before writing a medicine, you have to understand the socio-economic background of your patient, that afford कर सकता है, afford नहीं कर सकता है, मैं कुछ और कर सकता हूँ different, है ना. You don't have privilege of western country कि ये दवा होनी है, लिख दी, your work is done. तो मैं बहुत सारे फैक्टर्स पेशेंट के इन एंड अराउंड देखने पड़ते हैं. ठीक है ना? अच्छा, इसका मैं थोड़ा सा ये कर दूँ तो यहाँ से मदद हो जाएगी, वहाँ से वो कर दूँ तो वो मदद हो जाएगी. एंड टू बी एथिकल, टू हैव अ राइट डायग्नोसिस, सब कुछ बहुत अच्छे से पढ़ाया. एंड मणिपाल इज़ सच एन ऑर्गेनाइज इंस्टीट्यूट. ठीक है ना? पैसे दे देना, फ्री में प्रचार कर रहा हूँ तुम लोग को. ठीक है मणिपाल वालों, मणिपाल वालों सर जो भी. व्हेन वी वेंट देयर, तो पहले साल में उन्होंने 5 साल का करिकुलम हमारे हाथ में पकड़ा दिया था. इस डेट से इस डेट आपकी पोस्टिंग यहाँ, इस डेट से इस डेट यहाँ पोस्टिंग, इस डेट से इस डेट एग्ज़ाम हो गए. अगले 5 साल तक एक भी डेट इधर की उधर नहीं हुई, एक डेट इधर की उधर नहीं हुई 5 साल तक. उसी टाइम पे पोस्टिंग, उसी टाइम पे एग्ज़ाम, उसी टाइम पे छुट्टी जो उसमें मेंशन था. एंड आई वाज सो इम्प्रेस्ड कि वो मेरे पास आज भी रखा हुआ है. क्योंकि आप इंडिया में ये चीज़ देख ही नहीं सकते हो यार. छोटी सी छोटी चीज़ों को लगे लोगों के एग्ज़ाम से लेके 1-2 महीने आगे हो जाते थे. तो इट वॉज, यू नो, किसी को अगर ये भी सीखना है कि किस तरह से चीज़ें मैनेज करनी है, प्लान आउट करना है, सो इट वॉज़ वेरी ब्यूटीफुल इन मणिपाल. जगह भी सुंदर थी, बहुत सुंदर. जो लोग मणिपाल जाने का अभी भी थोड़ा डाउट है, तो वहाँ क्रिकेट स्टेडियम के नीचे से नदी बहती है. जो हम लोग क्रिकेट और फुटबॉल खेलते थे तो वहाँ नीचे से नदी बहती थी. इट यूज़ टू बी अ वेरी सीनिंग, दे यूज़ टू कॉल इट एंड पॉइंट. हम लोग वहाँ पे भी बहुत जाते थे. एंड 5 किलोमीटर की दूरी पे बीच है, यू कैन हैव फन देयर. देयर इज़ अ लाइट हाउस बीच इन कापू, वो भी ज़्यादा दूर नहीं है. तो वी यूज़ टू विजिट ऑल दोज प्लेसेस. तो इट वाज फन. स्टडीज़ के लिए बहुत अच्छा है, एकेडमिक्स के लिए बहुत अच्छा है, स्पोर्ट्स के लिए बहुत अच्छा है.
तो ओवरऑल आपके पास कोई भी टैलेंट है ना, विद योर स्टडीज़ मणिपाल इज़ द बेस्ट प्लेस टू गो। डेफिनेटली सर। अभी जैसे एक अब कुछ सोशल इश्यूज़ के बारे में अगर हम लोग बात करें तो अभी एक आप ही ने आज या 2-3 दिन में पढ़ा होगा कि गवर्नमेंट इज़ प्लानिंग टू मेक 3 years ऑफ रूरल सर्विस कंपलसरी फॉर MBBS स्टूडेंट्स। सर व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? मतलब पहली बात तो मैं ये सोच रहा हूँ कि आप प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में जो स्टूडेंट पढ़ रहा है उस पर कैसे इम्पोज कर रहा हो? आपने तो उसके ऊपर कुछ खर्च भी नहीं करा। डेफिनेटली उसने तो वो पैसा भी दिया, उसका टैक्स भी दिया, सब कुछ आपको दिया। उस पर जो टैक्स जो भी लग रहा है, जो भी सर्विस चार्जेस है वो भी आप ले रहे हो, फिर आप उसको रूरल सर्विसेज भी दे रहे हो। ठीक है, चलिए आप बोल रहे हो कंपलसरी रूरल सर्विसेज, तो पहले उसको ये बताओ कि सुविधा क्या दोगे। रहने का प्रॉपर जगह होगा, ठीक है ना। इतनी गर्मी अगर गांव वगैरह में होगी तो आप प्रॉपर फ़ैन AC कुछ प्रोवाइड कराओगे क्या? ठीक है। एंड टेल मी, क्या सिर्फ एक ही कम्युनिटी बची है? गांव में बीमारियां क्यों फैलती हैं? गंदगी ज़्यादा है, ठीक है ना। वो कौन ठीक करेगा? सिविल इंजीनियर को लगाओ, अच्छी नाली और सीवर ये सब प्लान आउट करे। वो क्यों नहीं है वहाँ पे? जब वो नहीं फैलेगा तो आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, राइट। देन आप उसको गांव में बैठा तो दोगे, आप जहाँ उसको बैठाओगे वहाँ सुविधा कितनी होगी? ठीक है ना। सबसे बड़ा चीज़ है सिक्योरिटी का। और प्लीज़ कोई इस चीज़ को डिनाई मत करना, लेकिन गांव में होता है। अगर आपके पास ब्रॉड डेड पेशेंट भी आया है वहाँ डॉक्टर के पास और उसने बोल दिया कि ये पेशेंट डेड है, तो भी वो पीटा जाएगा, तो भी वो पीटा जाएगा। आई वॉज वर्किंग इन अ हॉस्पिटल, वहाँ पे एक इलेक्ट्रोक्यूटेड बच्चा आया था, उसको कहीं से करंट लग गया। मैंने रीच द हॉस्पिटल, उसको ब्रॉड डेड घोषित कर दिया गया। तो उन्होंने कुर्सी चेयरें सब तोड़ डाली उस हॉस्पिटल की लोगों ने। उसमें भी डॉक्टर की कोई गलती नहीं। सिक्योरिटी आप क्या दोगे? आप ऑलरेडी पहले से मना कर चुके हो, कोर्ट भी मना कर चुका कि हम नहीं दे सकते हैं, ठीक है। तो सर विदाउट ड्यू रिस्पेक्ट, हाँ, कि अगर इतना डर है तो आप वाई आर यू प्रैक्टिसिंग सेम थिंग है कि उनको इतना डर है तो वो इतनी सिक्योरिटी लेके क्यों जाते हैं कोर्ट में? हटा दो। अगर कोई ऑब्वियसली इंसान है, कोई आके मारने को बैठा तो डर तो लगेगा ही ना, चाहे आपने कुछ भी करके रखा हो, राइट। हमारे पास कोई ऐसा शील्ड तो है नहीं है कि 47 लेके तो घूम नहीं रहे हैं, ठीक है ना। तो द थिंग इज़, एक तो प्राइवेट इंस्टीट्यूट के बच्चों को आप कैसे लगा सकते हो? आपने तो कुछ करा ही नहीं है उनके लिए, ठीक है। जो कॉलेज है वो प्राइवेट वाले ने अपने से खोला, उसके लिए भी आपको जो भी है टैक्स वगैरह सब कुछ दिया हुआ है, ठीक। दूसरा वही मैंने बोला, बाकी लोगों को भी लाओ। ये मत सोचो कि लोगों के जो घर बार हैं वो ट्रीटमेंट में जा रहे हैं, उससे ज़्यादा लोगों के खेत जज एक इंसाफ पाने के लिए भी लग जाते हैं। तो वकील भी बैठाओ ना गांव में, वकील बैठाओ, दूसरे लोग बैठाओ, है ना, जिनको गवर्नमेंट सैलरी दे उनको बोले भैया गांव वालों के केस लड़ो तुम फ्री में। वो भी ज़रूरी है कि नहीं है? ठीक है ना। स्वच्छ पानी जाए, जल निगम वाले को गांव में बैठाओ, हर गांव में स्वच्छ पानी जाना चाहिए, क्लोरीनेटेड वाटर जाना चाहिए, और बीमारियां कम होगी, ठीक है ना। द थिंग इज़, बलि का बकरा है, सेम फैक्टर। लोगों को ये पता नहीं ये चीज़ हो क्यों रही है। जब ये हो जाए तो किसके पास जाना है बस वही पता है। तो बस उसी पे सारी जिम्मेदारी है, ठीक है। तो आप 3 साल MBBS के बाद उसकी लाइफ के ले लोगे, ठीक है ना। उसके बाद और फिर आप नेक्स्ट क्यों करा रहे हो? अगर आप उस 3 साल गाँव में 3 साल गाँव में रहने के बाद नेक्स्ट देगा क्या? इंटर्नशिप करने के लिए उसको नेक्स्ट देना है, राइट? यस सर। अब वो नेक्स्ट देगा, उसको लाइसेंस मिलेगा, वो इंटर्नशिप करेगा, फिर वो 3 साल रूरल सर्विस करेगा, तब वो सेकंड पार्ट देगा नेक्स्ट का, तब उसको आप चार्ट। मतलब ये मुझे समझ में नहीं आया। इससे बेटर है कि आप और इंस्टीट्यूट खोलो स्मॉलर लेवल पे। शहर में एक बड़ा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल होता है, राइट है। आप अपने CHC को बेटर बनाओ, CHC को बड़ा बनाओ, सो दैट इट केटर्स मोर ऑफ द रूरल एरिया। और आप वहाँ पे MD DNB ये सब सीटें लेके आओ जूनियर डॉक्टर्स की। यू विल प्रोवाइड बेटर सर्विस, यू विल प्रोवाइड बेटर सर्विस। जो सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है उस पर लोड कम होगा। यू हैव सो मैनी CHCs, आप उनको बड़ा करोगे, बेटर करोगे। एंड जब आप वहाँ पे MD MS सुपर स्पेशलाइजेशन की सीट लाओगे तो ऑटोमेटिकली लोग वहाँ जाएंगे। आपको किसी को घसीट के बंधुआ मजदूर बना के वहाँ रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप उसको बड़ा बनाओ, उसको बेटर बनाओ। भाई अब किसी को गवर्नमेंट उसमें मिल रहा है MD का सीट, अच्छा मुझे वहाँ मिल रहा है।
अच्छा वो गांव के पास का लेकिन पेशेंट लोड अच्छा है, वो मना करेगा क्या जाने के लिए? वो जाने के लिए मना करेगा क्या? जाएगा वहाँ पे, क्योंकि उसको अच्छी जगह से सीखने को मिल रहा है, जहाँ पेशेंट लोड अच्छा है, ज़्यादा पेशेंट आएंगे, देखेगा, ठीक है ना, और इन द सेम टाइम वो सर्विस देगा। और वो किसकी ड्यूरेशन कितनी है? 3 साल। 3 साल 3 साल वो सर्विस देगा, 3 साल में आपका अगला रेसिडेंट डॉक्टर आ जाएगा। एंड विद नो ब्रेनर्स आपको रेसिडेंट डॉक्टर्स को उतना पे नहीं करना पड़ता है, क्योंकि वो सीख भी रहा है तो वो ज़्यादा कंप्लेन भी नहीं करता है ना। और उसको पता है ड्यूटी भी ज़्यादा होंगे, ड्यूटी आवर्स भी ज़्यादा, उसको पता है वो जितनी गधा मजदूरी करेगा उतना ज़्यादा वो सीखेगा, और पेशेंट भी उतना ठीक होंगे। तो आप ये करिए ना, अगर आप CSC बेटर बनाएंगे तो होगा अच्छा। तो सर इन प्रेजेंट सिनेरियो आप देख रहे हैं डॉक्टर्स आर बीइंग हैरेस्ड by the public and you have spoken against the thing. तो sir what do you feel is the main reason? Is it our मतलब हमारी अपनी जो यूनिटी नहीं है उसकी वजह से है, या पब्लिक इज़ नॉट दैट मच अवेयर ऑफ द थिंग्स दैट नहीं डॉक्टर इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है? और अगर यूनिटी नहीं है सर तो व्हाट कैन वी डू टू मेक आवरसेल्फ यूनाइटेड? देखो यूनिटी तो नहीं है, ठीक है ना, यूनिटी तो नहीं है, क्योंकि बहुत जगह ऐसा होता है कि एक डॉक्टर ही दूसरे डॉक्टर, अरे उसने तो तुमको ये ट्रीटमेंट दे दिया है, ख़राब। आपको ये बोलना नहीं चाहिए, ये एथिक्स के कोड्स में भी है कि आप अपने फेलो डॉक्टर के लिए ऐसा नहीं बोलोगे। तो ऑब्वियसली यूनिटी नहीं है कंपटीशन की वजह से, और मुझे पता है कि वो क्यों इतना ज़्यादा कंपटीशन है। एक डॉक्टर को क्या क्या करना पड़ता है, मेरी बहुत लोगों से बात हुई तो देवर लाइक कि ये जो गाँव में बैठे हुए हैं सो कॉल्ड प्रैक्टिशनर, they come to a newly budding doctor, uncertified practitioner, हाँ uncertified practitioner, and they say कि अगर आप हमें अपने उसमें से कमाई में से एक हिस्सा दोगे तो हम हमारे गांव के मरीज़ आपके पास लेके आएंगे, राइट? अब वो मना कर देता है तो ये नहीं कि ये भाई साहब बैठ जाएं कि ठीक है उसने मना कर दिया नहीं भेजेंगे, वो उल्टा बदनाम करेंगे उस डॉक्टर को, ठीक है ना। मुझे ये स्टोरी मेरे एक कलीग ने बताई कि उनके यहाँ एक प्रोफेसर थे, उन्होंने एक वार्ड बॉय से एक बार गुस्से में कुछ बोल दिया क्योंकि उसने अपना काम नहीं करा था, तो उस वार्ड बॉय ने सारी जगह उनको बदनाम कर दिया कि इनके यहाँ के तो पेशेंट मरते ही हैं, इनके हाथ के पेशेंट मरते ही हैं। तो उनके पास अचानक से पेशेंट आना कम हो गए। तो दीज थिंग हैपन, ये चीज़ भी हमको झेलनी पड़ती है इन प्रैक्टिशनर्स से, ठीक है ना। दूसरा चीज़, ये प्रैक्टिशनर मरीज़ को अपने पास तब तक रखते हैं जब तक वो एकदम ख़राब ना हो जाए, फिर हमारे पास भेज देते हैं। तीसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हम लोग से बोला जाता है कि डॉक्टर अपने आप को कमर्शियल वो नहीं बनाएंगे, है ना, और बाकी जो मेडिसिन वाले हैं वो अपने आप को कमर्शियल बना रहे हैं, वो जादूगर सरकार की तरह आके बैठ जाते हैं, आपने देखा होगा न्यूज़ चैनल में, और पहली लाइन जो वो बोलते हैं कि उनकी दवाई क्यों लेनी चाहिए, क्योंकि एलोपैथी में साइड इफ़ेक्ट है, यस, ठीक है ना, एलोपैथी में। और वो बहुत चालाकी से लोगों के साथ ना खेलते हैं। सबको पता है कि किडनी ख़राब होने का सबसे बड़ा मेन कारण है डायबिटीज़, और लोगों की किडनी ख़राब हो जाती है उसकी वजह से। ये लोग उनको क्या परोसते हैं कि आपकी किडनी डायबिटीज़ से नहीं ख़राब हुई, वो जो आप इंसुलिन ले रहे हो ना उससे ख़राब हो गई है, ठीक है। इनने कोई रिसर्च नहीं करी, इनके बाप दादा ने कोई रिसर्च नहीं करी, और न्यूज़ उसमें कहीं कोई रिसर्च नहीं इस बारे में, ठीक है। सब यही बोलेंगे। दूसरा मतलब मेजॉरिटी कारण यही है कि ये झोला छाप बाबा वगैरह हो गए, और ये जो बहुत से जिनको अपनी प्रैक्टिस चलानी है, यू नो, अलाइड हेल्थ साइंसेस वाले, उनकी प्रैक्टिस उनके काम के दम पे नहीं हमको ही गलत बता के चलती है, हमारी दवाई इसलिए खाओ। और इनमें से एक भी जब पेशेंट सीरियस हो जाता है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते हैं। क्यों नहीं ले रहे हो तब पेशेंट अपने पास क्यों नहीं भर्ती रख रहे हो? करो इलाज ना अपनी दवाइयों से। तब वो पेशेंट हमारे पास क्यों आ रहा है? वो पेशेंट तब हमारे पास आता है, और अगर वो इतना क्रिटिकल कंडीशन में आप नहीं बचा पाओ, पूरा पल्ला झाड़ के वो बाद में ये बोल देते हैं कि बताओ वहाँ एलोपैथी में ले गए थे तो वहाँ ख़त्म हो गए, हमारे यहाँ थे अब तक तो सही थे, ठीक है। ये सब माइंडसेट लोगों को चलता है। मतलब वो लोगों को ये कन्विंस कर लेते हैं आपका किडनी ख़राब है तो आप नारियल पानी पीजिए विच इज़ वेरी हाई इन पोटेशियम, ठीक है ना, क्योंकि उनको पता जब कार्डियक अरेस्ट आएगा तो ये हमारे पास नहीं आएगा, फिर ये जाएगा किसी एलोपैथी इमरजेंसी में, और वहाँ जाके इसकी डेथ होगी तो फिर ये हो जाएगा बताओ एलोपैथी के हॉस्पिटल में गया था इसलिए मरा, सारा बिल एलोपैथी। हाँ, एक चीज़ बहुत से उनकी है कि वो टेस्ट कराने से मना कर देते, हमारी दवाई खा लो तुम्हारा डायबिटीज़ ठीक हो जाएगा लेकिन टेस्ट मत कराना। ऐसा एक कोई 12 बंकी में है, मैंने ऐसा सुना है। अच्छा, हाँ, वो टेस्ट कराने से मना कर देता है।
टेस्ट मत कराना। एक आए, उन्होंने बोला कि गर्दन में दर्द हो रहा है, तो उसने बोल दिया दवा खा लेना, लेकिन एमआरआई मत कराना गर्दन की, एमआरआई से बड़ा नुकसान होता है। एक एमआरआई से किसको नुकसान होता है? ना उसको यही नहीं पता एमआरआई क्या होता है, सीटी स्कैन क्या होता है, ठीक है ना। वो यही चाहते हैं कि आपका टेस्ट ना हो। आई रिमेंबर वन पेशेंट, एक बहुत बड़ा आयुर्वेदिक वो है हॉस्पिटल, वहाँ से वो आया था उसको उन्होंने खूब अपना ट्रीटमेंट दिया कि तुम्हारे जो ब्लॉक हैं वो खोल देंगे, तुम्हारा ब्लॉक है खोल देंगे, ब्लॉक है खोल देंगे। तो 1 साल बाद भी उसका ब्लॉक खुला नहीं, उल्टा बढ़ गया, ठीक है ना। और वो हमारी ओपीडी में आया, हमारे कार्डियोलॉजिस्ट के पास, उसने अपनी रिपोर्ट दिखाई एंड माय कार्डियोलॉजिस्ट वाज ब्लंट लाइक मी। उसने बोला मैं तुम्हारा इलाज तभी करूँगा जब तुम इसको सू करोगे, जब तुम उसके ऊपर केस ठोकोगे, क्योंकि हमारे ऊपर तो तुम लोग केस बहुत जल्दी ठोक देते हो। अब इसने गारंटी ली थी, इसने गारंटी ली थी कि आपका वो ठीक करेगा, नहीं ठीक हुआ, अब आप करोगे इसके ऊपर केस? वो मुंह नीचे करके बैठा हुआ था, ठीक है। गारंटी एक दूसरी प्रॉब्लम है, वह डॉक्टर गारंटी नहीं ले रहा था। तुम अपने घर में अपनी एक तुम्हारी कपड़े की दुकान है जिसमें तुम खुद बोलते हो कि आज के दौर में कोई गारंटी नहीं है। इंसान की गारंटी कोई कैसे ले ले? एवरी बॉडी इज़ मेड डिफरेंटली। लोग 80-80, 85-85, 90-90 साल के आदमी की गारंटी मांगते हैं कि गारंटी ले लो तो ही इलाज करेंगे। तो भैया गारंटी नहीं ले पाता। लोगों को ये चीज़ बहुत अच्छे से पता लग जानी चाहिए कि गारंटी किसी भी मरीज़ के ज़िंदा या मरने का सिर्फ ऊपर वाले के हाथ में है, और गारंटी लेने वाला फ्रॉड होता है, ठीक है ना। जैसे पीके में बोला था ना, फिरकी घुमा रहा है बस। तो वो गारंटी जो भी बोलता है कि हम गारंटी ले रहे हैं, वो सबसे बड़ा फ्रॉड है। मैं साफ अपने मरीज़ को बोलता हूँ कि भैया ये इलाज है, इससे अच्छा इलाज नहीं हो पा रहा। अगर आपको कोई ऐसा बोलता है कि इससे अच्छा इलाज है तो वो फ्रॉड है। आपकी इच्छा है, आप जाके करा लो, मैं उसमें मना नहीं करूँगा, वो तो आपकी इच्छा ही है। आप मेरे से ट्रीटमेंट नहीं लेना चाहते हो, आप इंडिजिनस मेडिसिन वगैरह लेने जा सकते हो। कैसे लेनी है, लेनी है नहीं लेनी है, मैं नहीं बता सकता, क्योंकि मैं उसका डॉक्टर नहीं हूँ। वो आपको ही, आपको उसके पास जो डॉक्टर है उसके पास जाके करना पड़ेगा। ये सबसे बड़ा कॉज है, नहीं जाते हैं लोग। और यूनिटी का तो बता ही दिया मैंने कि एसोसिएशन ही नहीं खड़ा होता कई बार, वो देखता है हमारा कहाँ पॉलिटिकल बेनिफिट है। तो यूनिटी इज, और जो बोलता है उसको अपने ही फील्ड के लोग आके, मैंने आप ही के कमेंट सेक्शंस में देखा है, इनफैक्ट मैंने हाँ उनके कि वो आके बोले अरे नहीं ये तो व्यूज़ के लिए कर रहे हैं, अरे ये तो फॉलोअर्स के लिए कर रहे हैं। बट आई वॉन्ट टू टेल एवरीवन कि मेरा एक किस्सा है कि मैंने नया मेडिस्नैप्स में पहला पॉडकास्ट, और मैंने सर को बस एक बार लिंक भेजा था। सर ने बिना किसी उसके मैंने और भी जगह भेजा, एंड पेजेस वर लाइक आई विल चार्ज दिस मच टू शेयर ऑन स्टोरी। सर ने डायरेक्टली पुट कर दिया कि मतलब आई वॉज नॉट नोइंग सर वॉज नॉट नोइंग मी, बट आई वॉज डूइंग समथिंग गुड, आई एम डूइंग इट फॉर द पीपल। एंड सर ने ऐसे ही पोस्ट कर दिया, और मैंने बहुत सारे केसेस देखे हैं। एंड स्टिल पीपल कम कि अरे आप तो फॉलोअर्स के लिए कर रहे हैं। मेरा वो कोई फॉलोअर, मैं वो फ़ैन कल्चर में हूँ ही नहीं, मैं बिलीव नहीं करता, तो मेरे को तो फॉलोअर्स का कोई है नहीं। एंड ये बहुत से लोग मैंने बताया ना, इस उससे आए थे कि अरे ये भी एक नया आ गया गुस्सैल आदमी, ये भी इसके भी वीडियो आएंगे, हिंदुस्तानी बाप। हाँ, वो धीरे धीरे उन्होंने मेरे को अनफॉलो कर दिया, एंड आई वॉज वेरी ओके। तुम्हारे फॉलोइंग के चक्कर में ना मैं नार्सिसिस्ट नहीं बन सकता, यू नो, कि मैं नार्सिसिस्ट बन के फिर कुछ भी उल्टा सीधा पोस्ट करना शुरू कर दूँ, नहीं, वो कभी नहीं होगा। एंड देन जब मेरे से एक उस बंदे ने बोला कि हाउ मच मनी यू विल चार्ज, आई सेड दैट आई थिंक आई हैव सम रिस्पॉन्सिबिलिटी, बिकॉज पीपल लुक एट मी दैट वे कि दैट आई एम द वॉइस ऑफ द कम्युनिटी एंड एवरीथिंग। सो आई कैन नॉट इंडल्ज इन दिस कि मैं तुमसे पैसा लूँ फिर करूँ एंड एवरीथिंग। इससे मेरा खुद की क्रेडिबिलिटी ख़त्म होगी। एंड एनीवेज इस पैसे से मेरी लाइफ पे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, ठीक है ना। इस पैसे से मेरी लाइफ, मैं जो कर रहा हूँ दैट गिव्स मी गुड इनफ मनी राइट नाउ, जिसमें मेरा गुजारा चलता है, इससे तो मुझे कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, राइट। तो मैं ये सब पैसे वैसे के लिए तो नहीं कर रहा हूँ, तो ठीक है, मेरे लिए ऐसे ही ठीक है। पीपल वांट हेल्प तो मैं कर देता हूँ। बहुत से लोग मेरे से इसीलिए जुड़े हैं कि जिन्होंने एक बार मैसेज करा, अगर मैंने पढ़ लिया है तो आई हैव गॉन आउट ऑफ माई वे टू हेल्प देम। एंड यू हैव बीन द वॉइस ऑफ द वॉइसलेस। हाँ, अब पता नहीं वॉइसलेस तो नहीं, वॉइस सबके पास होती है, बट यू नो पीपल आर हेजिटेंट टू स्पीक। डर लगता है कोई ये बोल देगा, कोई वो बोल देगा। आई थिंक वो थोड़ा थोड़ा मेरा डर ख़त्म हो गया है, बस थोड़ा फैमिली वाले पीछे खींच लेते हैं कि ज़्यादा मत बोलो। तो सर जो फ़िलहाल नीट पीजी की प्रिपरेशन कर रहे हैं,
उनके लिए कोई टिप्स आप जो देना चाहें, क्योंकि 1 महीने में नीट पीजी का एग्ज़ाम है 18 अप्रैल को, तो कुछ आप उनको। लास्ट के 10-15 दिन में कुछ नया मत पढ़ना, लास्ट के 10-15 दिन में कुछ नया नहीं पढ़ना, पुराना जितना उसको रिवाइज़ करते जाओ, वही बेस्ट है। क्योंकि आप नया पढ़ोगे ना तो वो टाइम बहुत लेगा, और उस चक्कर में जो आप इतना कुछ रिवाइज़ कर सकते थे ना वो नहीं कर पाओगे। पुराने आपने जो भी क्वेश्चन सॉल्व किए हो उसमें टिक करा होगा, जो उस टाइम पे नहीं सॉल्व हुए थे उसको वापस सॉल्व करो, वापस देखो तब नहीं आया था और उसको वापस से उसका थोड़ा सोल्यूशन वगैरह पढ़ो, नोट्स बार बार रिवाइज़ करो जो भी आपने बनाए हैं। क्विक एंड मीनिंगफुल रिवीजन होना चाहिए। दूसरी चीज़, जैसा कि इस बार क्वेश्चन घटा दिए गए हैं तो इट लुक्स लाइक कि इट विल बी लाइक अ वेरी लेंदी पेपर विद इंटरमिंगलिंग ऑफ ऑल द सब्जेक्ट, और उसके बाद आपको क्लिनिकल एक पिक्चर दी जाएगी। तो उस हिसाब से फिर देन यू हैव टू प्रिपेयर योर सेल्फ, ठीक है ना, उस हिसाब से यू हैव टू प्रिपेयर योर सेल्फ, है ना। यू हैव टू नो द राइट वैल्यू ऑफ ऑल द बायोकेमिकल मार्कर, क्योंकि वहाँ पे तो रिपोर्ट तो होगी नहीं कि रेफरेंस रेंज लिखा हुआ है। तो यू हैव टू नो कि अच्छा ये है तो डिरेंज्ड है, ये है तो डिरेंज्ड नहीं है, ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल नहीं, क्योंकि पेपर में अब वही चीज़ आएगी। अब ऑप्शंस तो नहीं होंगे कि भैया नॉर्मल लेवल ऑफ ट्राइग्लिसराइड इतना नहीं, उसमें दिया होगा द ट्राइग्लिसराइड लेवल ऑफ द पेशेंट इज़ दिस मच, दिस इज़ दिस मच। ये सब चीज़ें आपको अब आनी पड़ेंगी, तो उनको एक बार सबको देख के जाना है। क्विक रिव्यू सारे सिम्टम्स के, बीमारियों के, और जो उसका एक डिफाइनिंग सिम्टम होता है। वैसे फॉर एग्जांपल यू हैव अ पेशेंट विद आर्थराइटिस, अब वो बोल रहा है स्मॉल जॉइंट आर्थराइटिस एंड देयर इज डिफॉर्मिटी ऑफ फिंगर लाइक स्वन नेक पियानो एंड ऑल दैट, तो दिस इज रूमेटॉइड आर्थराइटिस, राइट, ठीक है ना। देन अनदर पेशेंट विद rash with increases on malar rash, increasing on sunlight, hair fall, arthritis, thrombocytopenia and low hemoglobin level, female in the reproductive age, you will say okay, this looks like more of an SLE. Yes sir. Right, so you have to know the defining symptoms now, ताकि आपको कोई confusion ना हो। right from the thing कि ये females में ज़्यादा होता है, ये males में ज़्यादा होता है, ये epidemiology, this is how you should now prepare yourself. तो सर लास्टली एक रैपिड फायर करेंगे हम लोग, बस आपको आंसर देना है। चलो देखते हैं कैसे करते हैं। लेट्स सी सर। आखिरी बार जब वाइवा दिया था तब हुआ था रैपिड फायर। तो इसमें मैं क्वेश्चंस पूछूंगा और आपको बिना सोचे आंसर देना होगा। ओके सर, स्टार्ट। चलो। फेवरेट फुटबॉल टीम? मैनचेस्टर यूनाइटेड, ऑलवेज। आपकी कार पे मैंने देखा। सिंस 2003, या सिंस 2003। फेवरेट सब्जेक्ट? मेडिसिन। ये तो सर एक्सपेक्टेड था। अदर देन मेडिसिन सर? अदर देन मेडिसिन ऑर्थो मेरे को थोड़ा अच्छा लगता था। ओके सर। फेवरेट टीचर? फेवरेट टीचर मेरे स्कूल में थी वाजपेयी मैम, शी वाज माय फेवरेट। ओके सर। नॉर्थ और साउथ? साउथ। साउथ इज ब्यूटीफुल, सीरीन एंड पीपल आर वेरी ऑनेस्ट। मणिपाल की एक चीज़ और, वहाँ आपका आईफोन गिर जाए आपको वापस मिल जाएगा। ओके। आईफोन आपका कहीं गिर जाए लोग वापस दे जाएंगे, लेकिन आपने अपना छाता कहीं छोड़ दिया है तो वो वापस नहीं मिलता वहाँ पे। बस छाता नहीं मिलता, बाकी आपकी कोई भी चीज़ मिल। साउथ में लोग ऑनेस्ट हैं, हार्ड वर्किंग है, एंड दे अभी भी वो अपने रूट से जुड़े हुए हैं। दे आर मोर इनटू स्टिल देयर लुंगीज एंड इन देयर बुक्स। सर कानपुर के बसाते या लखनऊ की बास्केट चाट? कानपुर के बसाते। हम लोग घर के पीछे के स्कूल, एक पूजा बुक स्टॉल थी हमारे, वहाँ से लेने जाते थे और 5 रुपये बचता था। मैं और मेरे भाई जिस हालत में होते थे उसी में खाते थे। कभी कभी तुम लोग ऐसी गंदी हालत में गए, पूछता है तुम लोग उस होटल में बर्तन धोते हो ना? एक बार मेरे भाई से मैंने कहा इतने ख़राब लग रहे हैं क्या? द मोस्ट डिफिकल्ट सब्जेक्ट ऑफ योर MBBS? कम्युनिटी मेडिसिन। I can't agree more, sir. एंड मेरा कम्युनिटी मेडिसिन का एग्ज़ाम से पहले मेरा जो कटा था ना, मैं अपने रूम की चाबी भूल गया, और एक सरदार जी थे वो हॉकी से ला के मार रहे हैं, अगले दिन यूनिवर्सिटी रात को 2 बजे आरी से काट रहे हैं सब कुछ, ठीक है ना। उस बुक ने मेरा इतना जीना ख़राब किया ना, जीवन पार्क। और जैसे ही मैंने, जब वो ताला टूट गया 1-2 घंटे की मशक्क़त के बाद, उसको टेबल में खोला तो चाबी उसके अंदर रखी हुई थी। मैंने कहा ये किताब ना हर चीज़ में, ये किताब ना आपकी जान ले सकती है। वेपन की तरह भी। लास्ट क्वेश्चन सर, फेवरेट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म?
इंस्टाग्राम। फेसबुक पे सब आ गए हैं, मेरे कॉलेज के गार्ड तक आ गए हैं, जी सर। है ना, मम्मी पापा सब आ गए हैं, तो फेसबुक से मैं थोड़ा सा दूरी बना के रखता हूँ, एंड इंस्टाग्राम इज़ ऑब्वियसली फेवरेट। जो लास्ट क्वेश्चन मैं ये बोलूँगा कि कोई स्पेशल मैसेज हमारे मेडिस्नैप्स के व्यूअर के लिए? देखो, बंदा बहुत सही कंटेंट तो बना रहा है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इसने मेरे से शुरू करा है इसने एकदम बढ़िया से शुरू करा है। तो और जो तुम्हारे प्रीवियस वीडियोस भी थे रिगार्डिंग दैट डर्मेटोलॉजिस्ट, इट वाज वेरी इंस्पायरिंग। तो ये काम तो आगे रखना ही है तुम्हें, बिकॉज अब तुम MBBS कर लोगे, आगे बढ़ोगे, तो इट्स योर ड्यूटी कि पीछे वालों को इंस्पायर करते रहो नहीं तो तुम्हारे कॉलेज में जूनियर कहाँ से आएंगे आगे जाके। तो दूसरा ये है कि आप मेडिकल कम्युनिटी में, इसका मतलब ये नहीं कि कोई आपसे ये आके बोल जाए कि हमारा तो मरीज़ बीमार था या मरा था इसलिए हम इमोशनल थे, हम ऐसा बोल गए। ये ठीक नहीं है, ये आपको सुनना नहीं है, ठीक है। अपने लिए थोड़ा स्टैंड लीजिए, ठीक है ना। फील फ्री टू वॉक आउट फ्रॉम अ सिचुएशन वेयर योर लाइफ इन इंडेंजर्ड, ठीक है ना। कोई मरीज़ आया है, मुझे पता है कि ये आपकी प्राथमिकता है उसकी जान बचाने के लिए, लेकिन अपने सीने पे गोली, अपने दिमाग में गाली का जख्म, ये सब लेके तो काम ना हो पाएगा और ना करना है, तो वो लेके नहीं करना है। जहाँ आपको लगे कि नहीं ये मेरे को पीट पाट सकते हैं, छोड़ो वो मरीज़ को, निकलो वहाँ से, ठीक है ना। पहले सिक्योरिटी, ठीक है, क्योंकि आप खुद सोचो, जब आपको गांव में पोस्ट किया जा रहा है, इसका मतलब कितनी कमी है डॉक्टर की, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा बहुमूल्य हो, पहले खुद को बचाओ। जैसे पहले खुद के मास्क लगाओ, दूसरे के बाद में लगाते हैं ना एरोप्लेन में, बस वैसे ही है। और पढ़ाई है, बहुत ज़्यादा पढ़ाई है, लेकिन एक बार मेरे फ्रेंड ने एक आर्टिकल लिखा था जब हम लोग फर्स्ट ईयर MBBS में थे कि एक्चुअली नॉट एवरीवन गेट्स टू डू MBBS एंड वी आर डेफिनेटली द चोजन वन फ्रॉम द गॉड। तो आप कहीं से भी कर रहे हो, यू आर डूइंग फ्रॉम इंडिया, यूक्रेन, कजाकिस्तान, फिलीपीन, मॉरिशस, राइट, चाइना, रशिया, or you're doing from any private medical college, government medical college, anywhere. Remember, if you are doing this, you are actually the chosen one, and you have seen the pain in this world more than anyone else could, right? Even the doctors posted in military service, they have seen the pain more than anyone else. You know, I have seen the pain of people, you know, crying, losing their loved ones more than anyone. I have also seen the joy of their loved one who was almost on the deathbed and who came back to life because we continuously persisted in our work. So that joy has not seen by anyone else, you know. And it's rightly said that more than temple, it's the wall of hospital that have heard more prayers, because then you know that what is more necessary. And that is why I say the life is more important. Live it, cherish it. Do not put undue pressure that you are a medical student and you have the, you know, दुनिया का बोझ. I know most of the people think नहीं पापा मम्मी इतना खर्च कर रहे हैं तो I have to study. Yes, you have to study on weekdays. Weekend are again for your mom and dad because they also want you to be happy at the same time. Work hard for them, be happy for them, and that is all you have to do in your life. Don't take undue pressure, don't be in a rat race, and always remember, always have a desire to be above from the crowd. मेरे को भीड़ का हिस्सा बनना नहीं है, मेरे को ऊपर उठना है, थोड़ा सा अलग रहना है. You will get everything. I think I was honest with myself, with everyone, even the one who betrayed me. So I have got a pretty decent life. I couldn't ask for a better family, such a humble background. I couldn't have asked for better friends. I couldn't have asked for better wife. And I couldn't have asked for better fans than you people are, although I say I do not like fan culture. But I never thought I would be this much, you know, relevant to people, although I wanted to do something different. But at the same time, it's good to be here. And it's good to be with you doing this. This is my first experience, and I also came to, every time you come to know one thing about yourself, like that my Bollywood quiz story, I today came to know that I can speak for a long time without taking a pause in English, being a UP guy. Okay, thanks a lot. Thank you so much, sir, for coming here.